was wiped out only because of one reason, that is poor cost accounting system. That's it, nothing else. Retail stores तो थे और भी, you know, Subiksha Retail was so ahead of its competitors. Big Bazaar was, I think, 1/3 at that time of what Subiksha Retail was. Reliance Retail, very new at that point in time. So it was one of the pioneers, but closed down in a matter of 3 years, even after having such huge amount of turnover. इसीलिए मैं मिनट 1 से बोल रहा हूँ, सेल्स के ऊपर फोकस नहीं है आज की तारीख में, कॉस्ट के ऊपर फोकस है. मेरा सेल्स है 120 करोड़, मेरा कॉस्ट है 130 करोड़, मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, 10 करोड़ का लॉस. I am doing this business for only one motive, which is profit. इसके विपरीत, I have a sales of 2 lakh, I have a cost of 50,000, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? I think I am better off than this. I may boast, मेरा 120 करोड़ का टर्नओवर है, प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट है क्या मेरे को? Why? Because my costs are overriding my sales, which happened here. यहां पे 2 लाख का ही सेल्स है मेरा, बट प्रॉफिट है क्या? हाँ, बिकॉज माई कॉस्ट आर कंट्रोल्ड, विच वॉज नॉट देयर इन दिस केस. Subiksha, you know, there was a time when it sold all its products below MRP. All its products below MRP. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बेच सकते, आज भी बेचने वाले बेचते. DMart still sells a lot of products below MRP and still it has huge amount of profits. Why? Because its cost system is clear. यहाँ पे इसका cost system clear नहीं था. When it is selling below MRP, you should have at least recovered the cost that you are incurring, which it was not doing. 120 रुपए किलो का चीज है अगर कोई, it was selling. So Subiksha, I'll tell you, 120 rupees per kg is the MRP. Subiksha started selling these things at 100 rupees per kg, 20 rupees के मार्जिन पे. ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मार्जिन हो सकता है, but did they check out on the costs? No, they did not. Gone in a span of 2 years. So that is where these cost accounting systems should be developed well from the beginning. You know, it will take a lot of time, it will take a lot of cost to implement those systems, but एक बार implement हो गया, उसके बाद at least मेरा product pricing incorrect तो नहीं होगा, ensuring that मेरा जो customer relationship है कहीं ना कहीं वो break नहीं होगा. This is what is going to happen definitely in this e-commerce market. Consumer is the king. Flipkart, Amazon, all these companies, they are coming up with so, you know, lucrative offers, good for the consumers, but let me tell you, within 2 years either of them will definitely close down, because वो cost को match ही नहीं कर पा रहा है, possible ही नहीं है उस लेवल के कॉस्ट पे बेचना. अगेन टर्नओवर मिल रहा है उसको, क्योंकि पब्लिक तो खरीदेगा ना, कम भाव है तो टर्नओवर मिल रहा है, बट क्या वो कॉस्ट मैचअप कर पा रहा है? नहीं. 2 years डाउन द लाइन, आई गारंटी वन ऑफ दीज ई कॉमर्स इज गोइंग टू गो बस्ट. सो मेनी ई कॉमर्स साइट्स हैव कम इन. I just 10 or 15 days back I purchased a watch, ऑनलाइन परचेज किया मैंने, सेम वॉच का, सेम अ वेरी गुड ब्रांड वॉच. आई वेंट टू द लोकल शोरूम, सेम वॉच वॉज कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली ₹5,000. यहाँ पे मैंने ई कॉमर्स साइट पे गया, आई गॉट द सेम वॉच एट ₹3,000. होगा भाई, ये रिटेल में जो बेच रहा है शॉप शोरूम लेके, उसका मार्जिन ज्यादा होगा, नो डाउट, बट देन यू नो गेटिंग दैट एट 3,000, ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स वैल्यू, not justifiable. But that's how it is. So you know, let's see, let's wait and watch how these are planning. अभी ये Flipkart का इतना महा सेल आता है, Amazon has such a big sale. So ये सब sales में ₹1 you get one pen drive of 400 rupees. These things are hitting them in terms of cost. They may not realize this now, but over a period of time होगा. Even Subiksha Retail, as I said, having a $51 million turnover and still going bust. So developing the cost accounting system is very, very important, because otherwise, as I said, your business will definitely go for a toss. Of service industry, थोड़ा एक अपन लोग ने लास्ट लेक्चर में शायद डिस्कस किया था. अगर आई एम टेलिंग यू, आई हैव अ क्लासरूम से, मेरे 3 बैचेस है, CPT, IPCC and final, right? There are 2 classrooms which I use in order to take my lectures.
If I am not using one of the classrooms for CA final, then should I allocate the cost of that classroom to CA final? Yes or no? Traditionally what I used to do, total classroom का जितना भी cost है, divide it by my courses. Was that correct? No. Again, let's not debate on correct and incorrect, but now I have a better way of doing that. आई हैव अ बेटर वे दैट नहीं, अब मैं बेसिस पे देखूंगा कि सीपीटी कितना आवर्स यूटिलाइज हो रहा है, आईपीसीसी कितना आवर्स यूटिलाइज कर रहा है वो क्लासरूम को. बेस्ड ऑन दैट आई विल फाइंड आउट इट्स कॉस्ट रिलेटेड टू दैट कोर्स. ऑलराइट, ओके, चलो नाउ राइट डाउन. As can be seen from above, as can be seen from above, as can be seen from above, traditional costing systems were designed long back when most companies manufactured a narrow range of products. And direct labor and direct material were dominant factory costs. अब वो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. सो दैट इज व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन. लीव 2 lines and write down. However, in the present arena, companies produce wide range of products
ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को, वेरिन डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटीरियल represent only a small percentage of total costs. बेस्ट एग्जाम्पल अपना पेप्सी, कोका कोला, फैंटा, स्प्राइट। अ 300 ml बॉटल ऑफ स्प्राइट का कॉस्ट कितना पड़ता है उसको, अगर खाली मैं वो डायरेक्ट मटेरियल लूं, यानी वो जो उसके अंदर पानी होता है, सोडा, वॉट एवर इट इज, उसका टोटल कॉस्ट होता है ये 300 ml का नॉट मोर देन 50 पैसा। दैट्स इट। अपने को ये 300 ml का प्राइस कितना देना पड़ता है, ₹20 नहीं, बहुत टाइम हो गया, 15 लेते हैं। कभी पिलाओ हमको तो पता चले। पे टेंशन नाउ। अ पेप्सी बॉटल ऑफ 300 ml, जो 300 ml उसका एक्चुअली होता है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल? 0.5 पैसा। वो जो बॉटल बन रहा है, चलो कहना इसे वो भी एक मेरा डायरेक्ट मटेरियल में ले लेते हैं, 0.5 पैसा। सो टोटल कॉस्ट, direct total cost that I am incurring for Pepsi is ₹1, whereas I am paying how much? Is this 14 rupees the profit that the company is making? इस बीच में बहुत सारे क्या है, indirect costs, overhead costs है, which are being recovered from each and every bottle. अब उसका अगर रिकवरी बराबर नहीं हुआ, can I say the whole costing system goes for a toss? बराबर कि नहीं? पहले ऐसा था ही नहीं, पहले खाली एक पेप्सी या कोका कोला, इसके अलावा देयर वाज नो अदर ब्रांड। नाउ तो यू विल फाइंड n नंबर ऑफ ब्रांड्स। कोका कोला इन इटसेल्फ हैज 10 ब्रांड्स, पेप्सी इन इटसेल्फ हैज 5 ब्रांड्स। सो इतना सारा प्रोडक्ट वेरिएशन है, इतना सारा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। इन दैट केस दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग बिकम्स ऑल द मोर एसेंशियल। समझ में आया? वाई आर वी मूविंग टुवर्ड्स द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, you know, be it any industry. टाइटन फॉर एग्जाम्पल, टाइटन क्या पहले टाइटन था, अभी टाइटन रागा, टाइटन ये, टाइटन वो, thousands of टाइटन पर्पल, टाइटन येलो, टाइटन ब्लैक, so many range have come. टाइटन एज, ओके इट्स ओके। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इतना हो गया है कि डायरेक्टली मैं सीधा एक ही प्रोडक्ट पे नहीं डाल सकता हूँ, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में इंकर कर रहा हूँ अगर, बराबर। से फॉर एग्जांपल टाइटन एज अ ओरिजिनल ब्रांड, से टाइटन ओरिजिनल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर लॉट ऑफ इयर्स, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, टाइटन ओरिजिनल एक है ब्रांड, टाइटन एज दूसरा ब्रांड, टाइटन पर्पल तीसरा ब्रांड। टाइटन ओरिजिनल एकदम एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एडवर्टीजमेंट का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो यहां पे मैं आता हूं, टाइटन ओरिजिनल ओजी, टाइटन पर्पल, टाइटन रागा एंड टाइटन एज। अब ये जो टाइटन ओरिजिनल है मेरा फ्लैगशिप ब्रांड है, स्टार्ट मैंने इसी से किया था, तो क्या इसको एडवर्टीजमेंट का जरूरत है, हाँ या ना? अब टाइटन एज अ ओवरऑल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंकर करता है 50 लाख का फॉर एग्जांपल। ट्रेडिशनली मैं क्या करूंगा, 12.5 लाख, 12.5 लाख, 12.5 लाख, 12.5 लाख, बराबर बराबर। बट डज टाइटन ओजी रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, यस और नो? तो क्या उसको 1% का भी कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए एडवर्टीजमेंट का? बट मैं करता हूं आज की तारीख में, हाँ या ना? गलत है। क्या है? आई विल हैव टू सी, ये मेरा जो कॉस्ट एक्टिविटी हुआ है, एडवर्टीजमेंट मेरा एक एक्टिविटी है, हाँ या ना? उसको मेरे को एलोकेट करना है उसके कॉस्ट ऑब्जेक्ट को। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे? टाइटन पर्पल, टाइटन रागा, टाइटन एज। सी दीज आर द टर्म्स दैट नाउ आई विल बी यूजिंग। उसके पहले मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ये मेरा हो गया एक्टिविटी कॉस्ट।
क्या? एडवर्टीजमेंट, बराबर कि नहीं? एक्टिविटी पूल हो गया मेरा, कॉस्ट पूल हो गया क्या? एडवर्टीजमेंट. सो फॉर मी दिस एडवर्टीजमेंट इज अ कॉस्ट पूल, एक्टिविटी पूल, which finally has to reach its cost object. बट उसके इंटरमिटेंट, उसके दरमियान मेरे को देखना पड़ेगा व्हाट आर द कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर दिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स. मतलब कितना एक्सटेंट का मैंने मार्केटिंग किया है पर्पल के लिए, रागा के लिए, एज के लिए. That I will come to know from the slots of advertising that I have used for giving an advertisement of Titan Purple, of Titan Raga, Titan Edge. समझ में आ रहा है तुम लोग को? सो जो एडवर्टीजमेंट स्लॉट्स है ना, से फॉर एग्जांपल मैंने बोला 50 लाख का मैंने टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंकर किया है. दिस इज बेस्ड ऑन, लेट्स हैव सम मोर क्लियर एग्जांपल. अगेन मेरा कॉस्ट पूल यहां पे किसका बन रहा है? मेरा एडवर्टीजमेंट का, राइट? अरे हाँ या ना? 50 lakhs. This has to finally reach its cost object. Its cost object is what? Tata OG, Tata Purple, Tata नहीं, Titan Edge. हाँ, मैं दूर की सोच रहा था थोड़ा. Now this is where the cost object has to reach. अब इसका बेसिस क्या होगा? इसका बेसिस होगा मेरा कॉस्ट ड्राइवर. Now what is this cost driver? I will check. ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट किया है, से फॉर एग्जांपल सोनी टेलीविजन पे किया है मैंने, जी एंटरटेनमेंट पे किया है, XYZ कहीं पे किया है, मैंने आईपीएल के टाइम पे किया है. टोटल मैंने 1000 सेकेंड्स का पे किया है 50 लाख रुपीज. कितना? 50 लाख रुपीज. सो 50 लाख डिवाइड बाय 1000 सेकेंड, तो कितना हो गया मेरा पर सेकेंड कॉस्ट? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैन वी हैव सम क्विक कैलकुलेशंस? 50 lakh is the total cost that I am giving for 1000 seconds. So can I say rupees 5000 per second is the cost that I am paying? That is my cost driver. अरे समझे? समझे कॉस्ट ड्राइवर? एवरीबॉडी. सो यहाँ पे 5000 पर सेकेंड इज व्हाट आई एम पेइंग. नाउ आई हैव टू सी ओरजी में कितना सेकेंड डाला मैंने? 0, तो उसको कुछ कॉस्ट एलोकेट होगा. पर्पल में मैंने डाला 500 सेकेंड्स, उसको होगा यस सर. रागा में मैंने डाला 200 सेकेंड्स एंड एज के एडवर्टीजमेंट में मैंने डाला 300 सेकेंड्स. नाउ थिंग्स बिकम क्लियर. तो यहां पे मेरा जो 50 लाख का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, कहना इसे 25 लाख is going to be allocated to purple. Very much correct. पर्पल भी कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि 1000 सेकेंड में से 50% सेकेंड्स किसके लिए यूज हुआ है? पर्पल के लिए. तो इसके लिए मेरा 50% कॉस्ट भी किसके लिए यूज हुआ है? पर्पल के लिए. अरे समझ रहा है ना तुम लोग को कैलकुलेशंस? सेम वे यहाँ पे जो बाकी का मेरा है, से 15 लाख एंड 10 लाख, 10 lakh and 15 lakh will be bifurcated among them, among Tata Edge and Tata Raga, absolutely on a rationalized basis. मेरा rationalized basis क्या है? 200 seconds मेरा ये यहाँ पे Raga यूज कर रहा है. 10 lakh is the cost that I am giving it based on my cost driver. मेरा cost driver क्या बोलता है? 5000 पर सेकेंड. कितना सेकेंड यूज किया है मैंने? 200 सेकेंड. 10 लाख रुपीज का मेरा टोटल कॉस्ट हो गया. बराबर. यहां पे 15 लाख कैसे आया? 300 सेकेंड यूज किया है. 5000 पर सेकेंड, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 15 लाख. अगेन रैशनलाइज्ड एंड जस्टिफाइड बेसिस. ओरिजिनल ने कुछ भी इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है. किया मैंने? नहीं किया. कुछ कॉस्ट आया? नहीं. प्योरली जस्टिफाइड एंड रैशनल. पहले अदरवाइज मैं क्या करता? सीधा डिवाइड बाय 4. 12.5, 12.5, 12.5, 12.5. कहना इसे उसकी वजह से टाइटन ओजी मेरा ओवर कॉस्टिंग हो जाता, यहां पे अंडर कॉस्टिंग हो जाता. अगेन ओवर कॉस्टिंग, अंडर कॉस्टिंग. दिस इज व्हाट हैव हैपेंड. नाउ वी हैव अ इक्विलिब्रियम बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग.
Clear, everybody? Thank you. Just gist down the factors that are responsible for activity-based costing. So leave a line and write down factors prompting the development of activity-based costing. Factors prompting the development of activity-based costing. Write down first. Growing overhead costs on a regular basis. As per, continue करना, as per a manufacturing industry research, the overhead costs have increased 5 times in the last decade or so. Second point, increasing market competition. Which necessitated more accurate product costs. Next, traditional costing fails to capture cause and effect relationship. Something like this. Cause and effect, कितना इम्पैक्ट था मेरा एडवर्टीजमेंट का पर्पल के ऊपर? ऑलमोस्ट 50%. इसके लिए कॉस्ट भी उसको कितना एलोकेट किया? 50%. बराबर. वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं होता है. एडवर्टीजमेंट मैंने यहाँ पे ओरिजिनल के ऊपर कितना किया? नील. बराबर. कॉज नील, इफेक्ट 12.5 lakhs. Cause 50%, effect 50%. Cause nil, effect nil. Are we understanding? समझ में आ रहा है cause and effect relationship? So यहाँ पे मेरा cause कुछ था ही नहीं, पर effect मेरा है 12.5 lakhs का cost. यहाँ पे मेरा cause कुछ था ही नहीं और इफेक्ट भी मेरा कुछ नहीं था. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्स इनटू कंसीडरेशन. समहाउ द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इग्नोर्स दैट. अगेन दैट इज द रीजन वी रिक्वायर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. समझा? सन्नाटा क्या बताना चाह रहा है? सब समझ में आया या कुछ नहीं समझा? गुड. राइट डाउन. फोर्थ, traditional costing often fails to highlight interrelationship among activities in different departments. Fifth point, direct labor and material
direct labor and material has shrunk as a percentage of total cost for majority of manufacturing companies. इतना कॉम्पिटिटिव सिनेरियो हो गया है ना यार. पहले डायरेक्ट मटेरियल्स के सप्लायर्स ज्यादा नहीं थे. मेरे को अगर एक पेन बनाना है और मेरे को प्लास्टिक शीट चाहिए, देयर वर 3 सप्लायर्स फॉर इंस्टेंस. नाउ देयर आर 10 सप्लायर्स. अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज अ बायर्स मार्केट. यहाँ पे मेरे को प्लास्टिक शीट खरीदना है, आई एम द बायर, इट इज माई मार्केट. इतना कॉम्पिटिटिवनेस हो गया है कि उसकी वजह से दे हैव टू सेल इट एट अ लोअर प्राइस. As market, what primarily happens is that direct material cost come, laborers available in plenty, labor cost come. India and China again will always compete for that labor cost thing. So the labor in India and in China is reduced to a certain good level. Overhead cost at the same time and increased to a substantial level. पहले कभी एडवर्टीजमेंट देखा था अपन ने? नहीं. आज एडवर्टीजमेंट ही देखते. पहले इनडायरेक्ट कॉस्ट इतने होते थे? नहीं, खाली डायरेक्ट कॉस्ट होते थे. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग नो प्रॉब्लम. Today's scenario, indirect costs have taken miles over your direct cost, and that is where activity based costing, activity के basis पे उसको product को link करो, that is going to give you the correct or the true product price. All right, right on. Next point. Overhead costs are no long a mere burden to be minimized. Are no longer a mere burden to be minimized. Its functions such as product design, quality control, customer service, production planning, etc. are as important to a customer as physical processes on the shop floor. Shop floor. Now leave one line and give a heading: activity based cost system. So now we will try and understand how does this system practically works. So give a heading: activity based cost system. Underline that and write down: ABC system is based on the link made between activities and products by assigning costs to products. Based on
individual products consumption